So, hi Shiba. Hello, Hi Nadia. again. And hello everybody. Hi. Thank you for watching our last episode. आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं. मतलब uh, मार मार पड़ने मार वाला पड़ मार पड़ेगी। Basically start करेंगे with something that you know I have felt myself, something that I've heard others say as well. So I'll बिल्कुल। just read a little scenario and you need to tell me कि आप लोग क्या सोचते हैं. Has this ever happened to you? And then हम बोलेंगे कि how is it connected to our हाँ, topic. हाँ, ठीक है? So basically, it starts with you're standing in a line and you're out there serving your best looks, full on in your vibe, glamorous, and your outfit is great. You're looking awesome, and it's like Instagram reelable material that you've made out of yourself. And out of that perfect environment, and everything being so on spot, something happens like a bam. What happens? सब कुछ रुक जाता है. The music stops, all the background noise stops, the world stops, everything is at a pause, and you hear that little voice calling you auntie. Okay. And you're like, it takes you a while to get into this thing and किसको बुला रहे हैं? realize, किसको हाँ, बुला रहे ये हैं? किसको बुला रहा है भाई? कौन कौन आंटी? है कौन आंटी? आंटी? मैं तो नहीं हूँ. Then you realize you are the one. Then you realize ये किसने मुझ पर ये जुल्म किया है? And at the same अभी तो time, मैं जवान हूँ. how is it connected to our topic, Hiba? आप थोड़ी So I बताएं think हमें. where we are, for myself, I feel that what I love being aging. मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है. हाँ. I love being because I think I've groomed myself quite a lot, and every age comes with special grace. But the way it is connected to our topic is कि हम इतना कोशिश करते हैं और मतलब आजकल के 20 साल की बच्चियां जो है क्रीम लगा रही थी, नाइट क्रीम और डे क्रीम और ये क्रीम तो क्रीम. लेकिन एक एक टाइम आता है इन आवर सोसाइटी दैट वी हैव एक्सेप्टेड कि हमारा जो जो बुढ़ापा है ना वो तो 50 से शुरू हो गया है. मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ. बस मैं तो मुझे 40 साल में मुझे किसी को बेचारी को प्री मेनोपॉज भी हो जाए ना तो क्या मुझे हॉट फ्लैशेस आ रहे तो बूढ़ी हो गई. नो, यू डोंट इट्स वेरी नेचुरल कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ. दिस इज और मैं बूढ़ा हो गया हूँ. दिस इज आई थिंक वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट. And me and Nadia, more than me, Nadia yourself, I think you are in a primary care. You come across it, and Yes. I'm bit more strict as compared to Nadia. And I think we wanted to discuss that why do we feel that we, especially as a desis, we do feel कि भाई हम 50 क्रॉस कर गया है. Even not aunties, even the ladies and the men, just हमारा बुढ़ापा शुरू. हाँ, और I think you can see that physically as well, like what I have noticed in primary care, like जहाँ पे मैं काम करती हूँ ना, it's an area जहाँ पे 80% of the population is elderly, and यहाँ पे England में elderly is after they're called elderly after the age of 65, although some patients who are in their 80s and 70s, they will come to me and you can't tell कि वो बंदा जो है 70 का है या 80 का है. They look so young, like as compared to their age. Yeah, of course you cannot guess their age. Yeah, absolutely. Like the other day I had this lady who came to see me. She was 85, right? Yeah. She's 85. She was all dressed up, Yeah. baal bane hue, blow dried, makeup hua, red lipstick. She had heels on. Mashallah. So pretty, literally, and gracefully pretty. Yeah, gracefully pretty. They do it very nicely, very gracefully as well. और आप हमारे कल्चर में देखें 85, 80, या तो लोग पहुंचते नहीं है उस एज तक, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, या तो उस एज पे वो पहुंचते नहीं, और अगर पहुंच भी जाए तो बिस्तर पे लगे होते हैं. Why? क्यों है ये उससे पहले हमारा तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि दो देयर टू वर्ल्ड्स. मतलब हालांकि इफ यू थिंक अबाउट इट, वर्किंग इन इंग्लैंड, तो हमारी जर्नल नॉर्मल पॉपुलेशन वुड हैव बीन इंग्लिश एक्चुअली, इजंट इट? सो एवरेज हमारी बट यू सी बोथ कम्युनिटीज है ना, और यू कैन एक्चुअली सी देयर इज सच अ बिग डिफरेंस. एग्जैक्टली. एंड वो डिफरेंस क्यों है? बेसिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस दैट टुडे. एंड वो विद अवेयरनेस के थोड़ा सा how to improve to bridge that gap, yeah, how to improve it, how to address it. और खिदमत के नाम पे I'm so sorry, this is gonna just hit me like मुझे जूतियां पड़ेंगी.
खिदमत के नाम पे अगर हमें भी थोड़ा सा खुद आपस में एज एल्डरली, नॉट एल्डरली, आपस में जो हमारी एज के बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं, बच्चे हमारी एज के जो लोग हैं, दिल की बात कर दी बच्चा। हम मिलीनियर्स कहते हैं, हमें मिलीनियर्स कहते हैं, हमारे हम जो मिलीनियर्स है, हमें यही सोचना चाहिए कि खिदमत के नाम पे घर वालों को या पेरेंट्स को या एल्डरली को बस बेड पे बिठा देना है, सोफे पे बिठा देना है, तुमने यहाँ से हिलना नहीं। दिस इज माई खिदमत टू यू, दिस इज नॉट अ खिदमत। नो, आई कंप्लीटली एग्री शिबा। आई थिंक ये अवेयरनेस जरूरी है सबसे पहले ये जानने के लिए कि ये डिफरेंस क्यों, इतना डिफरेंस क्यों। दूसरी हमने ये बात करनी है कि हम इस डिफरेंस को, इस इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कि ठीक है, जो बंदा जिसको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, दे शुड हैव सम अवेयरनेस of their problems and they should know about it कि क्या है उनको मसला, कैसे उसको treat करना है। I think we'll touch upon it in detail because this is where I normally struggle quite a lot. I struggle a lot क्योंकि मेरे पास जो मरीज आते हैं, I'm really sorry, मेरे पास इतने मरीज आते हैं and obviously I've not told my specialty, पर मैं उनको जब उनकी दवाइयाँ पूछती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है दवाइयों का, और उनको कुछ नहीं पता होता। and for example, somebody is on insulin. Somebody like insulin in the age of 55, they tell me that उनकी family member उनको insulin administrate करिए ना, I go in a utter shock. And when I'm doing consultations, Nadia, I'm talking and I'm very conscious. Trust me, I'm very conscious that when I'm talking to a patient, I talk to patient. Yeah. But the history is always coming from somebody else. Like I get that. The family member. Yeah. I refuse to go to appointments with my husband. My husband has some chronic condition. I refuse to go. I mean, I try to. When I go, I swear, मैं अपने मुंह पे हाथ physically हाथ रख के बैठी होती हूँ. I don't want to interfere it. Yeah. I want him to take over the consultation, but I do not know that क्योंकि पेरेंट्स वो करते ही नहीं, इनिशिएटिव लेते ही नहीं है वो. It's not like वो नहीं करना चाहते, obviously. Yeah. वो लेते नहीं है. I'm sure आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा. बिल्कुल ऐसा ही है. Like आप कोई बंदा फॉर एग्जांपल अपनी 50s में आ रहा है, तो I am sure they have that cognition to be able to know their condition and what medications they are taking. But what do we get is बंदा आ रहा है 50s में, उसके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं, और आप उनसे दवाइयों का पूछे, ऑल्दो वी हैव गॉट द रिकॉर्ड कि क्या क्या दवाइयां हैं, लेकिन आप फिर भी पूछते हैं पेशेंट से. यू हैव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन. आपको पता होना चाहिए उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और वो खोल के बैठ जाते हैं अपनी दवाइयों का डब्बा. हाँ, डब्बा को बिस्किट के डब्बा से, हाँ बिस्किट के डब्बा, वो ब्लू कलर का. एग्जैक्टली. टिपिकल जो बैक होम चीजें होती है ना, people who have even come here, यहाँ पे जबकि इतनी हेल्थ एजुकेशन है, they tell you about everything, we tell our patients about everything, even then. नहीं नादिया, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत है. अभी मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में बहुत है. मुझे आपको याद होगा कि एक टाइम था जब मैंने एक आप सबसे पूछा था ग्रुप पे, और इतने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया था. आई वाज स्पेशली आस्किंग अबाउट डायबिटीज, और आपने और कितने लोगों ने, जो एक पाकिस्तान वुमेन का एक ग्रुप है फेसबुक पे, उन्होंने मुझे इतने सारे अवेयरनेस वेबसाइट्स बताई थी पाकिस्तान में. बट द प्रॉब्लम इज टू अवेल देम and to accept it and to do it. You should be willing to do that, of course. Absolutely. I think जब तक आपका खुद नहीं होगा ना रुझाव इस तरफ, nobody can help you. Nobody can help you. I'll tell you something. I was an SHO, ये 10 साल पहले की बात है. 10 साल पहले की बात है. And there was this I was in a cardiology unit. And एक बंदा, we were a PCI center as well. तो वहाँ पे जी एक हश बन गई. I was on call. हश बन गई, और there's a PCI coming. Bed ready हो रहा है. Obviously I was not allowed in the theaters, but हमारा जो बाहर है. And I was like, oh, you know what, एक मरीज है, and उसको 40 years में ना उसको ST elevation MI हो गया है. And then इतना स्ट्रेस हो गया है कि भाई 40 आ रहा है, और एम्बुलेंस और पूरा सब कुछ हाई अलर्ट पे चल रहा है. And when after half an hour, we got to know the guy is Asian. Okay, it was like it's an expected thing. Everyone was like, now we can make a sense of it because he's an Asian. It's like, okay, that's why. Then automatically आपके रिस्पेक्टिव चलना शुरू हो जाते हैं. अच्छा 40 है, एशियन है, must be hypertensive, must have diabetes. और ये भी था, ये सब कुछ था. It was such a shift of the मतलब environment ना. वो शॉक जो है वो बिल्कुल like expectations में बदल गए. बिल्कुल.
बिल्कुल. And I still remember it. You know, these incidents in your life you remember. I still remember it. 10 years ago this happened, and I still remember it. Has happened because this is the way we are perceived in the society, which is not completely wrong. And we talk so much about health inequalities and how you can promote health in at different ethnicities. ये सिर्फ एशियन साउथ एशियन कम्युनिटी नहीं बल्कि इवन अफ्रीकन कैरेबियंस जो होते हैं ना उनके लिए भी काफी काम होता है क्योंकि उनकी भी ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम ही है एज साउथ एशियंस. So I think there are different factors, Shiva. Of course, cultural factors भी हैं साउथ एशियन कम्युनिटीज में. बैक होम अगर आप देख लें, ठीक है, आपको इतनी अर्ली डिजीजेस होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, जेनेटिक्स प्ले अ रोल, बट सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, इट्स योर लाइफस्टाइल एज वेल. इट्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ. मल्टीफैक्टोरियल. हाँ, बिल्कुल मल्टीफैक्टोरियल होता है. बिल्कुल सही है. जब तक उसकी अवेयरनेस नहीं होगी, यू कैन नॉट चेंज इट. इवन I know awareness भी हो तो people are not willing to change it. So I think the acceptance and the awareness, वो मतलब I think we were discussing the same thing. मैं जब भी मेरा कोई एपिसोड होता है ना, मैं और हारून मैं जाके घर होती हूँ, ऐसा हो गया, and he also tells me कि देखो it's not something, this is coming from generations. मतलब you just carry on कि भाई हम तो मतलब हम इस स्टेज पे आ गए ना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब. And they don't realize the seriousness of the situation. They don't acknowledge it. I don't know how to influence that change, that no, you're not old, you're young, you're only 55 or you're only 60, even 70, you're only 70. I think age is just a number. आपकी age वो है जो आप feel करते हैं, ठीक है, and how you can change that is of course by working on those factors. हमारे साउथ एशियन कल्चर में एक तो एक्सरसाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट अबाउट एक्सरसाइज, लाइक देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर ओल्ड एज. ठीक है, प्रिपरेशन फॉर ओल्ड एज or delaying the oil. Exactly. I think this is lovely line, honestly. Preparation for old age. Yeah, I think ना हमें ये पता है कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं. 40-50 साल के लोगों को देखो, आप घुटने लेकर बैठे होंगे, नहीं मूव कर सकते. क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि आपने शुरू से अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं किया इस टाइम के लिए कि जब आपका वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है. तो क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. शुरू हो गया है ना, तो दैट इज द एंड पॉइंट. भाई वेयर एंड टेयर इज नॉट समथिंग वो कहते हैं कि अब तो हमें आ गया ना, हम कुछ नहीं कर सकते. You can still do something. You can still do something. This is just the start. You do not want to get to a point where there is no comeback, or there is the only resort is going for a surgery, replacement करा लो. आप इसको पहले ही रोक सकते हैं, लेकिन you just need to work on it. But really struggle. They are really struggling in my clinics, and I always tell कि भाई कल्चरल सिर्फ उस जनरेशन में तो होता ही होता है जो मतलब हमसे एक जनरेशन पहले है कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते. And then I actually shift my focus to somebody who's sitting with them, apparently mostly millennials, कि भाई what do you think? And honestly a lot of people, and I must say they were so nice, and they come across them कि we do ask them. हम बोलते हैं कि आप go for exercises. Nobody is mostly saying कि भाई आप bed just sit at one place, just go make. किसी की कोई हॉबी नहीं है, किसी की कोई एक्टिविटी नहीं है. Exactly, I think I completely get you on that. Especially देखें ये जो मेल पेशेंट्स होते हैं या जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं जो कि सोल ब्रेड अर्नर्स जो होते हैं, they are like they will work to an age, and after that they'll completely stop working. They won't have any hobbies because they never had a hobby. So they cannot continue having that hobby when they are when they retire. They can't create a hobby. Absolutely, like, and then that is the point where they become depressed. क्योंकि अचानक से you are earning at a certain age, फिर आपकी जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, और फिर आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह you stop working, or you get to an age where you just stop working, and then you've got nothing to do. All of a sudden. Exactly. What do you do then? आप इस मुल्क में, sorry to say, not इस मुल्क में, even पाकिस्तान में तो चलो बहुत, इस मुल्क में तो बहुत जरूरी है कि भाई आपकी कोई सोशल लाइफ हो, आपके फ्रेंड्स हो, योर अदर फैमिली. बच्चे इवन इन पाकिस्तान यार, बच्चे कभी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, रिश्तेदार कभी एक यहाँ पे. अब
ना किसी के घर पे जाके बैठ सकते हैं। घर कल्चर, आई कॉल इट घर कल्चर। सुबह उठो एक घर में, शाम को जो ईद का कल्चर होता है, सुबह उठो एक घर में, शाम को दूसरे घर में। पर आप एक घर कल्चर कब तक कर सकते हैं? और इवन आप जो मैंने रियलाइज किया ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, ये घर कल्चर भी पाकिस्तान में खत्म हो रहा है। लाइक पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ईच अदर एनीमोर। लाइक जो पहले होता था, लाइक यू नो नेबर्स का आपस में रिलेशनशिप एंड ऑल, इट इज फेडिंग अवे. You know, everybody is so busy in their lives. Everyone is so busy. You know, it's just fading away. Life इतनी fast paced हो चुकी है. Nobody is bothered about others. आप अपनी फिक्रों में गुम रहते हैं. So I think to combat that situation, अगर हम उस एक पॉइंट को देखें जो हमारा कल्चरल एक्सपेक्ट है, एक तो एक्सेप्टेंस की कमी है. Am I right? Absolutely. एक तो एक्सेप्टेंस की कमी है और अवेयरनेस की कमी है. अब I will not give the benefit of this doubt of awareness to the people actually living in UK. Because at least every single time they come to you, they come to me, we tell them, and we tell them in a very clear words. We tell them, I actually tell my patients, I actually write in my letters, Nadia, that I am giving you exercise as a prescription. Okay. And the answer is कि जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम तो पूरा दिन काम करते हैं. और मैं 1000 दफा उनको बोलती हूँ, मैं भी पूरा दिन काम करती हूँ, मैं भी तो हूँ ना आलू जैसी. मैं भी पूरा दिन काम करती हूँ, लेकिन मेरी भी एक्सरसाइज का जो अप एंड डाउन होता है, बट आई एम स्टिल क्वाइट कॉन्शियस. मतलब मेरा एक जिस तरह, पर काम तो हम सभी करते हैं ना. इस मुल्क में ऐसा हो नहीं सकता कि आप काम ना करें. बिल्कुल. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सर्शन एंड एक्सरसाइज. बट वी आर सो, मतलब इतना प्राउड फील करते हैं कि जो हम डेली घर में काम करते हैं उसमें इतना प्राउड फील करते हैं कि हम उसको एक्सरसाइज बोलते हैं. बट ऑब्वियसली what you're doing is your daily life. It's not an exercise. I completely get that. क्योंकि आप पेशेंट से पूछते हैं आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप तो वो कहते हैं मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं सारा दिन खड़ी रहती हूँ. You're like, खड़ा होना तो एक्सरसाइज तो नहीं है. Like मैं सारा दिन खड़े होकर किचन में काम करती रहती हूँ, मैं सारा दिन खाना बनाती हूँ. हाँ, और फोकस्ड एक्सरसाइज हांडी में चम्मच लगाते रहते हो. That's all. चिकन कढ़ाई बन रही है, वो नहीं जा रही है, पाए बन रही है सारी रात. इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है हॉस्पिटल की. आपके पास एक मरीज आया है और आपने उसको एक एडवाइस दी है और उसने नहीं सुना है, वो चला गया है. वो दोबारा आएगा, हम उसको दोबारा वही एडवाइस देंगे, वो चला जाए. वो तीसरी दफा आएगा, हम उसको बोलेंगे भाई हमने तुम्हें 3 दफा एक चीज दी है और तुमने उनमें से एक भी चीज नहीं किया, तो मैं और कुछ नहीं कर सकती, यू गो बैक. And I can justify it. You know what? This is not, this person is not gaining the benefit from it unless you show me that there are some encouragement. But in your case, you can't do that, isn't it? You can't do that. Somebody will come with the same thing 1000 times. So obviously, there's no way you can discharge them. कि भाई मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप यहाँ तक पहुँचे हैं, waiting, people are waiting months for this appointment, and please focus on getting something out of it. आई थिंक यहाँ पे मुझे ना एक दो पेशेंट्स मेरे याद आते हैं, और ये टिपिकली ये वो साउथ एशियन पेशेंट्स है. ठीक है, आप मेरे पास एक दो लेडीज आती हैं, दे आर रेगुलर्स मेरे लिए. ठीक है, बिकॉज आई स्पीक उर्दू, तो दे फील कंफर्टेबल कमिंग टू मी. तो दे बोथ हैव डायबिटीज, राइट? और दोनों के ब्लड टेस्ट बस ऊपर 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 जाते जा रहे हैं. ठीक है, एंड दे कम टू मी एवरी टाइम. आई टेल देम कि आपने यू नो डाइट में ये चेंजेस करने हैं. ठीक है, मेडिकेशंस हम चेंज कर देंगे, जो भी है, वॉट एवर वी कैन डू, वी कैन रिफर यू टू यू नो स्पेशलिस्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है, एंड एवरी टाइम दे कम, वी डू द ब्लड टेस्ट, वो स्काई हाई. और मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ आपने डाइट में चेंज की है, आपने अपने लाइफ स्टाइल चेंज की है? लेकिन हमने तो बहुत डाइट चेंज की है, हमने तो खाई नहीं. मैं तो सब कुछ करके मैं तो खाती नहीं हूँ. हाँ, मैं तो खाती ही नहीं हूँ. हाँ, मैंने रोटी छोड़ दी है, मैं अब चावल खाती हूँ. रोटी छोड़ दी है मैंने, अब चावल खाती. ठीक है, और सिर्फ फ्रूट्स, एक आम, 2 केले. लाइक आप, मैं एवरी टाइम उनको बताती हूँ, लिख कर देती हूँ, मैं उनको लाइक प्लेट बना कर दिखाती हूँ कितना क्या क्या पोर्शन होना चाहिए आपकी प्लेट में, प्रोटीन कितना होना चाहिए, और लाइक कार्ब्स आपको किस टाइप के कार्ब्स लेने चाहिए. लेकिन यार एवरी टाइम दे कम वही हाल, और वही बढ़ता जा रहा है. एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद देम. लाइक यू नो, इवन स्पेशलिस्ट भी क्या दवाइयाँ देते जाएंगे, इवेंचुअली क्या होगा? दवाइयाँ भी कब कितना देंगे? देयर शुड बी. फिर वही बात आ जाती है ना, एक दवाइयाँ, एक स्पेशलिस्ट एक हद तक कर सकता है.
ठीक है, किसी के, दिस इज समथिंग आई वांट टू डिस्कस एंड मैजिक तो नहीं है ना, किसी ये का मैजिक मैजिक तो नहीं है। आपकी बीमारी जो है वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, फुल स्टॉप। आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है, नॉट द जीपी, नॉट द स्पेशलिस्ट, नॉट योर फादर, योर सन, योर चाचा मामा फूफा ताया, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी सेहत जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे कुछ होता है वो कोई और उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ कि नादिया ने तो मुझे बताया नहीं, मुझे तो दवाई, इट्स नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं तुम्हारे पास आती हूँ, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है मुझे ये मसला है, मुझे बताओ मेरे लिए और क्या ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे कल्चर में ये भी है, एडवाइस लेते जाएंगे हर जगह से, इधर से भी उधर से भी, सेकंड ओपिनियन भी ले लेंगे, ठीक है। अमल किसी पे नहीं करना, अमल नहीं करना। एडवाइस आप हर बंदे से ले लेंगे, अपने 1000 टोटके इस्तेमाल, लाइक ये जो लेडीज आ रही, ठीक है, मैंने रोजाना सुबह निहार मुंह अदरक का ये लेती हूँ, चिया सीड्स लिए हैं मैंने, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चिया सीड्स के जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पोर्शन देखा, मेरा ऊपर कदम नीचे का, ओह माय गॉड, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इसके। I think when I was doing my low carb, then I googled it, पता नहीं कितना सही है गलत है, अगर गलत है तो प्लीज मुझे बताएं। I said there was a decent amount of carbohydrates because I was cutting down carbohydrates myself, and I was like, oh my god, I'm not going to go down that route. आप लोग हमारे कल्चर में यही कहते हैं कि 55 के बाद बचपन आ जाता है, ठीक है। बच्चों के साथ आप क्या करते हैं? डू यू जस्ट लेट देम, you know, do you spoon feed them for everything, or do you want them to learn something that would help them progress? Exactly. ठीक है, तो अगर 55 के बाद बचपन आता है तो प्लीज ट्रीट देम लाइक दैट, ठीक है। yeah, just let them show them the skills that they need to progress, ठीक है, not to slow down. Exactly. And there was something else, Nadia, we wanted to touch base. This all comes in a package, you know. So many people have raised it as well. जब हमारे बुजुर्ग, name, let's not बुजुर्ग, जब हमारे बड़े, then they believe they are बुजुर्ग, you know, like the parents, they started sleeping in different rooms. They don't even hold the, मतलब मेरे अबू ने तो कभी हाथ नहीं पकड़ा भाई अपनी बीवी, like they're so shy. हाँ, shy, and I think culturally shy, I would say, because I think हमारे culture में acceptance नहीं है इस चीज की. Why? Like, I don't understand. If there's anything medically that can be addressed, I think we are happy to more of that generation भी, I think it's that generation, like millennial से पहले की जो generation है, they are like that, right? I think we are the cycle breaker, like we break all the rules. No, we don't feel shy, you know, showing your intimacy, like obviously, you know, what is allowed in a very graceful way, in a very graceful way. I don't think so there's any harm to show respect and love to your partner in a very graceful way. As a lot of times, even my son, I say, you cannot talk like this to my husband. I make sure he knows that his dad is also my husband. Which he doesn't understand. Like, what is husband? But he needs to realize that, you know what, my and my husband relationship is also a stronger relationship, even though he shares a very strong bond with each one of us, but our relationship is there. So he can't just misbehave, or he cannot be naughty with either one of this, because absolutely other one will not be tolerated. You show that care. Exactly. You show that, you know, आपका जो relationship है, and you want them to learn from it, so that they follow it in the future. आपने कमरा अलग कर दिया, मतलब आपने टाइल्स सब तोड़ दिए, like what is it? अब सारी जिंदगी इस बात की टेंशन थी कि टाइम नहीं मिला, और जब टाइम आता है स्पेंड करने का तो अजनबी हो जाते हैं. A lot of people, I'm sorry to say, travel separately. अगेन अम्मियाँ जो हैं वो ट्रेवल कर रही होती है, कभी एक बच्चे के पास, कभी दूसरे के बच्चे, जो डैड होते हैं उन्हें कहा हमें तो हिलना भी नहीं है. दिस इज वेरी कॉमन. वी सी, अगर आपकी कोई टाइज हैं, अगर आपको कोई रीजन है टू स्टे बैक एंड एवरीथिंग, दैट मेक्स सेंस. लेकिन अगर कोई रीजन नहीं है, कुछ हो नहीं है, just because you're not comfortable, you know, like if somebody wants to travel, then why can't other person can travel if there are no strong ties? And one thing that I want to raise here is कि जब तक आपके पास वो कंपेनियनशिप है, आप उसको वैल्यू करें, क्योंकि जब वो कंपेनियनशिप नहीं होती ना, that is when you realize how important it was, and
आपने उस टाइम पे उस कंपेनियनशिप को वैल्यू किया होता और आपस में अपने आप को एक दूसरे को टाइम दिया होता, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होती. एब्सोल्युटली. एंड वर्क ऑन हॉबीज. आई थिंक वन ऑफ माय सजेशन विल बी कि वर्क ऑन हॉबीज. मैं 6 साल हो गए हमारी शादी को और मैं इतनी जेलस होती थी मैं अपने मियाँ से. ही इज पैशनेट अबाउट हिज क्रिकेट एंड आई वाज लाइक यार मेरी जिंदगी में कोई पैशन ही नहीं है. और मुझे आज तक इस बात का शदीद दुख है कि मेरी जिंदगी में कोई पैशन ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि पढ़ाई 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 पढ़ाई. मेरी स्टोरी तो बिल्कुल अलग है. आई गेट इनटू एवरीथिंग. I just get into everything. That's really nice. और that is something like हम दोनों आपस कहते हैं कि आतिफ मुझे कहते हैं you take on everything. चाहे तुम्हारे पास कैपेसिटी है नहीं है, you want to do everything. But that's good, isn't it? You like Absolutely. I like to stay busy and I think it is very important to stay busy. जब आप ठीक है, at the moment life is very busy with work, kids, young family. But it's better than you're sitting on the phone and crawling. Absolutely, something productive. I think you need to do something productive. चाहे वो gardening है, आप gardening करें, अपनी garden का ख्याल रखें, जो मर्जी करें, लेकिन find yourself a hobby, keep yourself busy. It will be good for your mental health. It will be good for keeping yourself occupied and feeling worthy. And you have so many groups. मुझे पता भी नहीं चलता. एक अजीब सा कोई डांसिंग ग्रुप था. मुझे एक बंदा आके कहता है कि मैं रैंडमली, आई लव टॉकिंग टू रैंडम पीपल बाय द वे. तो एक रैंडमली देयर वाज दिस गाय वाज जस्ट आई वाज इन द पार्क एंड वो थोड़ा लिंक करके चला. तो मैंने कहा कहता मैं डांसिंग ग्रुप पे गया था. मैंने कौन सी डांसिंग हॉलिडे. सो अपेरेंटली व्हाटएवर आप चाहते हैं करना, ही वाज इन अ स्पेशल काइंड ऑफ अ डांसिंग. और वो डांसिंग के क्लब जो एक स्टूडियो में जाके करता था, उनका अपना एक हॉलिडे जाता है जो जाके वो दिन में 2-3 दफा डांस करते हैं और फिर घूमते रहते हैं. But that's so cool. And this takes me to something that I found, like हम लोग ड्राइव कर रहे थे and Heaton Park के पास I think there was a banner, ठीक है. And when I looked at the banner, मैं वैसे ही रीड कर रही थी and I was like pleasantly shocked or surprised, whatever you said, like wheelchair bound people का football that's team. so good. I know, like that's it's very something nice, that if somebody enjoys something, being differently able should not stop you from doing that. There are ways. You just need to find those ways. So you can get a lot of, if you are interested, if you take that initiative, there are a lot of things that can आ सकती है ना, they can come together. Yeah, absolutely. So we have decided, हमने तो आज तो मैं आउटकम लेके जाऊंगी. आपने एक्सेप्टेंस करनी है, आपने अवेयरनेस करनी है और आपने हॉबीज करनी है, आपने आपको एंगेज रखना है. Is there any physical exercises we have touched? Stay young, please. Stay young. नादिया को नहीं बोला आपने, आंटी नहीं बोलना है आपने. आंटी मैं फील ही नहीं करती यार. I'm very happy. आप मुझे आंटी बोल सकते हो. I'm actually happy, but I don't think so. Health conscious होना, regardless to be auntie or not auntie, because even we were discussing with your husband as well yesterday. There's a shift, और हम मैं भी I was just telling Atif bhai as well, we were just trying to change your diet. You guys have changed your diet. We are working on our diet as well. We are working on our kids' diet as well. Not that we are forced. कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है, but we are, there's a momentum, isn't it? कि momentum चल रहा है कि you know what, चलो let's try to eat healthy. Because ये long term में आपको पता लगेगा. अभी आपको नहीं पता लगता कि क्या होगा आपके साथ with that kind of a diet. But ये जो processed food है और all of that, ये शो अप करेंगे लॉन्ग टर्म में आफ्टर few years. ठीक है. It will be too late then. Too late. Yeah. But it will always better to start at some point. So the people who think कि हमें तो हो गया है, honestly you can always start at some point. हम भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं. कि हम बचपन से ही हमें भी बचपन से बड़ी कोशिश की थी देसी पराठे खिलाने की और खिलाने की. Thank God I never liked desi ghee. Because of my issues, but smell issues, but we have come from that background, and हम लोग खुद भी तो every day we are trying to groom ourselves. There is no reason that nobody else can. Up until last couple of years, मैं खुद like I did not have a very healthy lifestyle. ठीक है. Exercise barely anything. ठीक है. ना आइडिया था, ना मुझे पता था ये फोकस एक्सरसाइज क्या होती है. ठीक है. कार्डियो सुना के बंदा कहता है कि हाँ कार्डियो करनी है, फैट बर्न करना है, लेकिन आई हैड नो नॉलेज अबाउट दिस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कोर स्ट्रेंथ क्या होती है. आई रेड अप ऑन ऑल दैट. ठीक है. आई लॉस्ट वेट and you lost a lot of weight. The reason why I did that was कि मैंने
अपने लिए भी ये करना था और अपने बच्चों के लिए भी ये हाँ। करना था, ठीक है। आई डोंट वांट टू कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन इन अ एज जहाँ पे मैं लाइक डिपेंडेंट हो जाऊँ। यू डोंट वांट टू कम टू दैट पॉइंट जहाँ आप किसी पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। यू शुड बी एबल टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ओल्ड एज। अपने अपने जॉइंट्स का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने वेट का ख्याल रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। एग्जैक्टली, एंड ऑल ऑफ दैट यू कैन डू विद वेरी सिंपल थिंग्स। वेरी लाइक आपने सिंपल थिंग, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज नहीं करना, एग्जैक्टली। ठीक है। लिटिल एट अ टाइम एंड देन आपको पता भी नहीं लगेगा, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, ठीक है। नाउ लाइक अनकॉन्शियसली आई नाउ अवॉइड आई नो अगर क्योंकि हमारी स्टोरीज फॉलो कर रहा है। कल नावी और हम लोग गए वॉक पर, कहीं वॉक पे गए थे ना। हाँ। और वो वहां पे एक कॉफी शॉप थी और मैंने लिया मिल्क शेक, वनीला मिल्क शेक, आलू आलू got a milkshake and Nadia got a water. I got a water. I mean, beautiful lakeside cafe. I shouldn't have got the milkshake anyway, but मैंने milkshake लिया और नादिया जो है उन्होंने water लिया। तो this is healthy choices and everything. I actually wanted to say one last thing before we wind up. जब कोरियन ड्रामों का फेज आया था, जो पाकिस्तान में बड़े चल रहे कोरियन ड्रामे, तो मैंने भी एक कोरियन ड्रामा देखा था। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की नादिया, उन्होंने बोला कि किसी भी माँ बाप की पहली जिम्मेदारी उसकी अपनी सेहत है। That's such a huge line. Absolutely. If you think about it, ये बहुत deep line है। हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है or something that could have been preventable and I couldn't prevent it, so this is gonna affect my child. Absolutely. So I think this was a very good. अगर आपके कोरियन ड्रामास के अगर किसी को नाम चाहिए तो मैं आपको भेज देती हूँ नाम। Is there anything else, Nadia, you want to touch base on? No, I think we have already summarized as well आज के टॉपिक पे, जो हम, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है, हम तो बोलते जाएंगे it will never end. It will never end. समराइज करने की आदत है ना, ये वहां से आई है, पेसेस से नहीं आई। जो एग्जाम नहीं होता जिसमें आप समराइज करते जाते हैं, थोड़े देर के बाद समराइज कर रहे होते, फिर आप फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, जब हम प्लान की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल, कि हमने समराइज करना है, अच्छा फिर दोबारा से स्टार्ट करना, फिर समराइज करना, बिल्कुल, क्योंकि वी नीड टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। बस आपने अंडरस्टैंडिंग करके एक कमेंट करना कि मुझे समझ में आ गई बात। Yeah. Perfect. So we're gonna just wind it up today, inshallah. Okay. And we'll see you guys next week. Yeah. Comment, please. Comment. क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? करें comments, please. चलें, okay. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz.